आजकल वो यूरो ओनली लिव वंस वाला कॉन्सेप्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आजकल शो ऑफ का भी एरा काफ़ी आ चुका है. मटीरियलिस्टिक कंजम्पशन इतना बढ़ गया है कि पीपल दे आर नॉट कंज्यूमिंग थिंग्स टू सेटिस्फाई देमसेल्फ. वो इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज उन्हें सामने वाले को सेटिस्फाई करने की तू हो जा, मेरे पास ये है. मिनिमम सी चीज़ें भी इवन दे आर बाइंग देयर क्लोथ्स ऑन EMI. आई मीन अगर आप फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं. क्लोथ्स अगर आप इसको EMIs पे खरीद रहे हैं, गाइज यू आर टोटली स्क्रूड. अब तो मैं जेनजी को सिर्फ ये एडवाइस देना चाहूँगी, आप अर्ली इन्वेस्ट करें अपने कैफ़ेज़, मॉल्स, आईफोन्स इन एक्सपेंसिव चेक-इन्स, चेकआउट्स आप कर सकते हैं जब आपके पास अच्छा खासा आपके पास सेविंग्स हो. एंड जब तक आपकी सेविंग्स और कंजम्पशन के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं है तब तक स्टॉप स्प्लर्जिंग, इन्वेस्ट. इट्स रियली हाई टाइम. एंड हाउ आई कैन बिल्ड माई माई पोर्टफोलियो, हाउ कैन आई बिल्ड पोर्टफोलियो एज इन नॉट फाइनेंस, माई रिज्यूमे और माई पोर्टफोलियो, मैं कैसे अपने आप को बिल्डअप कर सकती हूँ, कर सकता हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग एंड नेटवर्किंग कंप्लीटली डिफरेंट. सोशलाइजिंग आप क्लब्स में करें, नेटवर्किंग आप अच्छे से प्रोफेशनल लोगों से मिलके करें तो वो बेटर होगा. क्लब्स में कोई नेटवर्किंग नहीं होती है. यू नीड टू टॉक टू पीपल. So networking and socializing are completely different. Networking is really important in financial career because that's the only way you can build connections and that's the only way you can build yourself. First is one of my favorite, which is about जो मैंने earlier question answer किया था on Gen Z, the monk who sold his Ferrari. It's all about materialistic things. I'll promise you will come out of your materialistic obsession. To be honest, Nifty 50, SBI, stocks, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, SIP, ग्रो एप्लीकेशन, ये सब सुनने में थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, है ना? पर बिल्कुल नॉर्मल है. बहुत स्टूडेंट्स को फाइनेंस एक कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक चार्ट की तरह लगता है, full of ups, downs and technical terms. But the truth is, just like you don't need to be a trader to use UPI, you don't need to be an expert to understand the basic of finance. That's why we bring real life stories where industry professionals share the experiences and tips. Welcome back to another episode of Student Series Podcast, where we diversify your knowledge portfolio and help you compound your career growth. Today we have with us Ms. Anushka Gupta. She is a finance graduate for Symbiosis University and currently working as a relationship manager at Wealthcare Security Private Limited. She helps clients with their financial planning, wealth management and investment advisory. So if you are investing in stocks on Grow or starting your SIP journey, this episode is packed with insights for you. Let's start and learn from Anushka's inspiring journey. Hi Anushka. Hi. तो ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग lakhs of students are choosing commerce or business or finance for their career. What actually motivates you to become to be entered into this field? जब मेरे स्कूल से वो स्ट्रीम फिलिंग का फॉर्म आया था, so my father asked me one question that what do you want to become? And I was like, I genuinely have no idea. मुझे नहीं पता है because 10th तक जब हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग we can't figure out कि हमें क्या करना है लाइफ में. So he said, do you want to become an engineer? Of course not. My brother is already an engineer. I don't want to enter into this field of science. मुझे नहीं जाना है. So you want to become a doctor? मैंने कहा I just told you I don't want to explore the science field. I don't want to be in science. So he was like, तो कहते हैं ना कि बच्चे पेरेंट्स को पता होता है कि वो क्या चाहते हैं अपने बच्चे से, वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछते कि पूछ लेते हैं. Why don't you try to become a CA? Like not happening. है तो CA नहीं करने वाली, not at all, because obviously you see their journey. It's so difficult to become a CA and of course with so much competitions it's something which is totally impossible. So I was like कि humanities तो करनी नहीं है, science तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ओके कॉमर्स ही ले लेते हैं.
when I entered into that subject, oh my God, it's amazing. You know, business studies, economics, accountancy, you know, जो हम literally हम big businesses को करते हुए देखते हैं, वो actually में study करना कि how businesses are made, how decisions are taken, what is equity, what is liability, what is asset. उस time पे तो ये सारे words ऐसे लगते हैं कि I mean, what all are they? And फिर उसके बाद उनको पढ़ना, समझना is something which was amazing, and I'm so glad that I chose that field. So of course I should give this credit to my father for sure, because he definitely helped me a lot. I still remember our night sessions where he used to sit and guide me ki this is how you can solve, you know what, this is what it means, this is how it processes, this is what asset does, this is the impact of an asset in turnover. So sitting with him, I think I've learned a lot about finance, and I'm still learning, you know, even in night sessions also, he still comes and he still sits with me and he still guides me. How can I leave my path in finance? How can I involve in this business journey? And how I can make my own portfolio. So I think big credit goes to him. And I'm so glad that I chose this field. Another person in my life who genuinely helped me a lot was my tuition teacher. She used to teach me accountancy and economics. And she was the one who helped me a lot, that you can do it, you know. Still now I'm in touch with her, and whenever I tell her that I'm doing CFS, she's so proud of me. She always says, I'm so happy that you finally picked up something. I genuinely wanted you to become a CA, but even though you are exploring the field of, you're in finance. I'm like, yes ma'am, I'm in finance. Okay, good job, you are doing amazing. So I feel these two people are extremely important, because they were the reason who helped me to enter into this field, and they were the one who made me feel interested in that field. वरना मैं तो कब का छोड़ चुकी होती. It's okay, it's fine, let's just leave and move again. So but they were the one की नहीं करो, अच्छे से होगा. It's nothing, you can do it. So yeah, I think these were the one who motivated me. And I'm still motivated. Let's see how it goes. So yeah. So बहुत सारे स्टूडेंट्स CA और CFA को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और अगर मैं चूज करने की बात करूं तो कौन सा पाथ ज़्यादा सुटेबल साबित हो सकता है? So CA stands for Chartered Accountancy, and whereas CFA stands for Chartered Financial Analyst. So दोनों के नाम में ही पता चल रहा है. तो CA में आप, अगर आप ऑडिटिंग में अपना करियर करना चाहते हैं, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना करियर करना है, तो आप CA चूज़ करें. एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में करना है, इफ़ यू आर मोर इनटू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड तो वैल्यूएशंस, तो यू शुड गो विद चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट विच इज़ CFA. सो CFA में 3 लेवल्स होते हैं. Level 1, Level 2, Level 3. It's a globalized degree. So basically आप CFA इंस्टीट्यूट ये पेपर कंडक्ट करवाता है, and it's a world wide exam. हर जगह एग्जाम होता है. इट्स कम्प्लीटली अवेलेबल. आप CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन. सो उसमें आप ऑल 3 लेवल्स में आप पहले लेवल 1 में आपको देना होता है. एंड वाइल गिविंग द लेवल 1 इज़ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, बिकॉज दैट टेस्ट योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, because that's where your foundation builds. That's where you get to know about more into equity, more about corporate finance, ethics, how companies take decision, how valuation is important while taking and while making the decisions, while making the reports. Whereas level 2 test all those basic concepts and applying those concepts. It's all about application as such. Whereas level 3 is about portfolio management. That's the end of your CFA journey. And after clearing all 3 levels, you get a charter holder. But for that, you need to have a work experience for minimum of 3 years. And if you get a charter holder, that means you hold a big degree. It means that you are well reputed. It means basically charter holder for CA, it's a CA degree. For CFA, charter holder is everything. Like, it's something which we aspire for. The moment we enter into a CFA journey, everybody wants to have a charter holder. That at least, serving 3 years in a company, when you get a charter holder, it feels like your journey was fulfilled. You stand out in that CFA community, and you connect with people. Like, that gives you it opens more career opportunities for you. So about suitability, if you want to do something in investment, if you want to do something in portfolio management, then CFA is amazing. And if you want to do something in auditing, then you can go with CA. It's okay, it's fine. CA takes almost, I think, 4 years or something, while CFA takes only 2 years or something if you clear all your
levels in single attempt. Otherwise, it will take so many years. So yeah, then when you enter into that thing, you know, I heard this a beautiful line. If I'm not wrong, Arun Jaitley sir said this or someone else. CA घुसते तो तुम अपनी मर्जी से हो, निकलते उसी की मर्जी से हो. जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक निकलोगे नहीं. While CFA is also like that. एक बार फंस गए, जब तक कर नहीं लोगे तब तक निकलना तुम्हारे हाथ में नहीं है. It's all about amount of determination, amount of hard work that you give to that exam. You need to pamper your exam for sure. You know, that pampering requires, you know, you need to be very much firm, and you know, you have to sit for long hours for the preparation. And both the fields are beautiful. It's just that both of them are addressing different you know, fields. One is auditing and another one is investment. So yeah. तो अनुष्का, जैसे आपने CFA के 3 लेवल के बारे में बताया और CFA के लेवल 1 का पासिंग रेट ही 43% है, तो समझ में आ रहा है कि एग्जाम विल बी टफ, मुश्किल होने वाला है इसे पास करना. पर आप जॉब भी कर रही हैं, प्रिपरेशंस भी कर रही हैं, तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे कर पा रही हैं? I started my preparation in month of March. And उस टाइम पे, as I mentioned, I didn't mention that, I mentioned now. So I'm taking classes from Ashwini sir. So I attended one of his seminar, and you know, students, they were curious and they were asking about preparation. And one student asked, how do we balance our preparation and job and college and everything, because obviously there are so many students who are preparing for CFA. So he answered it very well, and I follow all his instructions. He said, wake up as early as you can. So try to wake up before your job. If you're starting your job around, if you have a like work call like around 9 or 10, so wake up around 5 and study for some time. And after finishing your study, do your work as per your schedule. And after finishing your office, give at least 1 or 2 hours. That's something which is in early. Later, when things are started piling up, you know, pressure comes, 2 months are left, 3 months are left, the clock is ticking. And that time, it's really important to manage, because that's the crucial time. The 90 days are the most crucial time for any exam, whether you're preparing for any competitive exam. And when it comes to professional exams, it's something which is more difficult. So how I do that is something I devote at least 8 to 9 hours for my study. Like, I do everything. You know, I go out with my friends also, and I do party, I do go out with my friends, I do visit cafes, but that's something which is in back foot. My front foot is preparing for my preparation. That should come first. Prioritizing. That's something which is really important. You should prioritize. If you know that your exams are coming up, you need to prioritize. Ask your manager or ask your boss or something. Give them, you know, give me some time. I'm preparing for this exam. Even if you can't say, wake up early, as I mentioned, wake up early, prepare, be calm, stay calm, everything will be done. I mean, you know, you need to devote at least 5 to 6 hours daily for studying. That's why I said, start early as you can. Even it doesn't matter what you are doing. Even if you're investing, start early as you can. When it comes to your studies, you're investing your time. Time is the most crucial thing. Start early, that's all I can say. There is no point of starting. You have exam in November, you're starting in August, then you are a fool, definitely. You know your exam is in November, it's already decided, you have filled the form, you know everything. Start early, nobody is stopping you from starting early. So it's better to start early and devote at least 5 to 6 hours initially, and later 8 to 9 hours, and you will be able to manage and crack the exam. So yeah. And when it comes to 43% of passing rate is something which is, those 43 people, they have devoted that much amount. That's why they have cleared the exam, and rest they haven't. That's why they couldn't. So I feel the exam is difficult, and everybody knows that. You know that, I know that, everybody knows that. So of course we already know everything. So we, you know, already CFA Institute has mentioned we are difficult. You need to work hard to clear this. So it's something, give some time, give more time to your studies, to your preparation, to your concepts, build the concepts, and you will clear it for sure. तो अनुष्का, अभी तक हमने प्रिपरेशंस के बारे में बात करी. अब मैं मान के चलती हूँ कि मेरी जॉब लग गई है, ठीक है, पर जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वहाँ पर आजकल सब करियर्स जो हैं वो स्लो डाउन हो गए हैं. तो क्या फाइनेंस में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है?
I would like to answer this question with one line. If your intelligence is artificial, you will be replaced for sure. Nobody can stop you from that. I'm not working on my concepts. I don't know about how to handle minimum things. So I will be replaced. Why a manager or why a boss will trust me if I don't know how to manage few things in life? And they will not trust me with the investments horizons, and they will not trust me with with clients ki I don't think so this person is way more competitive or way more efficient and productive while handling the clients, because that person doesn't know about the basic concepts. Then you will definitely will be replaced for sure. When it comes to taking decisions about finance, I would like to mention is the most insecure and the secure field when it comes to finances. Person is secure. I have money, I'm secured, but I'm still insecure. I mean, what if I lose all my money? मेरे पास बैंक अकाउंट में है, मैंने रख दिए. I don't know what to do with the money, and I'll not, as a person, I'll not trust AI algorithms to manage $1 million of rupees of mine. I need a financial advisor for that. I need an investment person for that. I need a wealth manager for that, because I trust that person's decisions, that person's analysis. I trust that because that person has studied a lot. Your career is not in danger for sure, because अगर हम CFO की बात करें, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स की बात करें, the way they think, do you really think AI can think in that way? Of course not. They know each and everything about their company, how decisions are working. अगर मैं ये decision लेता हूँ, कैसे ये decision मेरे company के आने वाले रन को कैसे impact करेगा? That's what a person does. क्योंकि he is not only taking strategic decisions, वो emotional decisions भी लेता है. They are involved with humans. They know how to take decisions. And I feel AI is not that well qualified for that. Of course, I've always mentioned that you should inculcate AI in your field, but don't be fully dependent on AI. आप AI को अगर अपने साथ inculcate करेंगे, you will be able to do wonders. And now we are seeing algo tradings. They are going amazing. Initially, the cryptocurrency came. People will be like, it's a revolution for, people like, crores of rupees, 10,000 invest करो, crore रुपए आते हैं. Cryptocurrency, it's a digital currency, you can't trust. किसी country की currency नहीं है. Blockchain came, algo tradings, stock markets, you can invest directly through Grow. So all these things are evolution, they're evolving. With evolution, you also have to evolve. Back in 90s, we used to say कि, जब आए थे, ATMs नहीं बने थे. The moment ATMs came, people were like, bank tellers will be, यार, उनकी job तो खतरे में है, they are finished. It didn't happen. While even, in our field also, we are regular and direct SIPs. जब डायरेक्ट SIPs आई थी तो और ब्रोकरेज फर्म्स और लाइक अब तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आ गई यार, डायरेक्ट SIP आ गई, अब तो लोग डायरेक्टली SIP करेंगे, हमारी तो ज़रूरत ही दी है. वी आर स्टिल हेयर, वी पीपल नीड अस. सो दैट्स समथिंग, इट्स ऑल अबाउट द वे ह्यूमन ट्रस्ट ह्यूमन. I don't think so the human, in the same way human trust AI. Of course not. हाँ, I'll not say कि कोई भी job replaceable नहीं है. All jobs, they might be replaceable, but feels like in finance, marketing, sales, human resource, they are not going anywhere. So chill guys, you are not going anywhere. You are still here. एंड मुझे ऐसा लगता है आगे जाके और चीज़ें बढ़ेंगी. आप अपने आप को इवॉल्व करना सीखो, AI को इनकलकेट करो, AI को कैसे यूज़ करना है अपनी फील्ड में, अपने काम को कैसे अगर जिस काम में मुझे 4 घंटे लगते हैं उस काम को मैं कैसे मिनिमाइज कर सकती हूँ, वो आप करो. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. कोई रैंडम पर्सन है एंड उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है, उसे रिस्क मैनेजर्स हायर नहीं करे. रिस्क मैनेजर से क्या ज़रूरत है, मैं AI पे रिप्लाई प्रॉम्प्ट डालूंगा, आ जाएगा. प्रॉम्प्ट आ गया. विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? जब बेसिक वर्ड्स ही नहीं पता है, यू डोंट नो ABCD ऑफ फाइनेंस, हाउ विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट AI इज आल्सो सेइंग? यू नीड अ पर्सन फॉर दैट. हाँ, ऑफ कोर्स रिस्क मैनेजर का काम थोड़ा कम हो जाएगा कि हाँ ठीक है, पहले हमें पास डेटा पूरा एनालिसिस करना पड़ता था, वो एनालिसिस ऑलरेडी डन हो जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं. बट ऑफ कोर्स यू नीड पीपल फॉर दैट. यू आर नॉट एट ऑल रिप्लेसेबल. I'll again mention that if your intelligence is artificial, you will be replaceable. So work on your concepts, work as hard as you can, and you will be able to proceed in life. So there's nothing to worry. You're not going anywhere. So it will not happen for sure. But मैं ऐसे कहूँगी कि you should take everything in a positive way and do study about AI, how it can help you in making your decisions more effective. Of course, you should do that, but don't
बिलीव कि अगर ये आ जाएगा तो यार हम तो गए. अगर आप पहले ही इस माइंडसेट से रहोगे ना, यू विल नॉट वर्क हार्ड. इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, यू नो, इट्स ऑल इन साइकी हाउ इट वर्क्स. यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ. दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड stay calm. When there is a will, there is a way. So just stay calm. Nobody is replacing you, and nobody. Tax payers इतने कम है, वो भी replaceable होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन देगा? Nobody is going anywhere. We need jobs, we need people, we need money. So nothing is gonna happen. सो अनुष्का, जैसे आपने बताया कि आप वेल्थ केयर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड में रिलेशनशिप मैनेजर हैं, तो आपका रोल एग्जैक्टली क्या इन्वॉल्व करता है? एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करूँ. एंड इट बेसिकली मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ बिटवीन क्लाइंट्स एंड मी. सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं डिसीजंस जो उनके पोर्टफोलियो के लिए ले रही हूँ, दे आर इफेक्टिव एंड मेरे डिसीजंस उन्हें नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करें. You know, because as a relationship manager, it's my duty and responsibility to think about client before me. You know, everything is not profit. I remember my father saying this thing to me. When a person is coming to you, that person is not coming for a profit. That person is coming for a service. And you are a service provider. So think about client first. Don't think about, इसमें invest कर रहे हो तो यार हमें profit मिल जाएगा. No. योर मोटिव शुड बी कि मैं क्लाइंट का कैसे फ़ायदा करवा सकती हूँ, मैं क्लाइंट अपना पैसा लेकर क्या आ रहा है. Obviously, that's something which is really important. So as a relationship manager, it's my duty, it's my responsibility to take care about the decisions, कि वो decisions उन्हें सही तरीके से impact करे, उनके पोर्टफोलियो को impact करे, एंड मैं कैसे उनके मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट से भी मैक्सिमाइज प्रॉफिट उन्हें ड्राइव करके दे सकती हूँ. दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो या. तो अनुष्का, इन्वेस्टमेंट करनी है सबको पता है, बट कैसे करनी है, कब करनी चाहिए, ये किसी को नहीं पता होता. कब करूँ मैं ये इन्वेस्टमेंट? मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अर्ली इन्वेस्टिंग इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल. जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है. अब क्या होता है इन्वेस्टमेंट में, जैसे मैंने बताया, टर्म्स तो लोगों को पता नहीं होते, तो वो बहुत ही एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है. अरे यार, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, SIPs क्या होती हैं यार, डेट फंड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किस में इन्वेस्ट करें. लाइक इट्स सो डिफिकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग. कॉलेज स्टूडेंट्स, सो दे डिडंट इवन बॉदर. देयर पेरेंट्स है, वो देखेंगे हमें क्या करना. बट नाउ आई थिंक स्टूडेंट्स वो अवेक हो चुके हैं यार. फाइनेंशियल प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी चीज़ की सिक्योरिटी या डेट तक का तो पता नहीं है, यहाँ पे हम इसका कैसे सर्टेन करें. तो वो सर्टेनिटी अब लोगों के अंदर अवेकनेस आ गई कि चलो ठीक है, आप कर लेते हैं. सो पहले तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आई वुड लाइक टू से अबाउट म्यूचुअल फंड्स. इट्स रियली सिंपल. कुछ भी होता है, पूल फंड्स होते हैं. एक फंड मैनेजर होता है, आप अपना पैसा दो, पूल फंड होगा, वो पैसे कलेक्ट करेगा एंड वो फंड्स में इन्वेस्ट कर देगा. स्कीम्स होते हैं इसमें भी. सो म्यूचुअल फंड्स में देयर आर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. सो आई स्टार्ट विद इक्विटी. सो इक्विटी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो फर्स्ट इज लार्ज कैप फंड्स. सो लार्ज कैप फंड्स जो होते हैं वो फर्स्ट कंपनी से लेकर के जो 100 तक कंपनीज होती हैं, वो लार्ज कैप फंड्स में कवर होती हैं. सेकेंड आपका आता है मिड कैप फंड्स. सो मिड कैप फंड्स जो होते हैं 101 से लेकर के दे डील विद 250. 251 से लेकर के जो कंपनीज होती हैं टिल बियॉन्ड, तो वो सारी कंपनीज आती हैं आपकी स्मॉल कैप फंड्स में. फ्लेक्सी कैप तीनों में इन्वेस्ट करता है, लिमिट करके. फिर आते हैं आपके डेट फंड्स. अब ऑब्वियसली लोग होते हैं यार, इक्विटी तो यार इट्स फुल ऑफ रिस्क, बिकॉज ऑब्वियसली बात है उस पर तो मैनेजर सब रिस्क ले रहे हैं, तो यार इतना रिस्क तो हम नहीं लेंगे, बिकॉज सम पीपल आर कंजर्वेटिव ऑल्सो, कि दे डोंट वांट टू टेक रिस्क. हम यार लिमिटेड में भी खुश हैं, लेकिन हमारा पैसा कहीं डूबना नहीं चाहिए. तो वो आते हैं, उसमें आप डेट फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. डेट जो होते हैं वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं. तो आप इन सब चीज़ों में आप डेट फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो. थर्ड कम इंडेक्स फंड्स. सो इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो पैसिव इन्वेस्टमेंट में डील करते हैं. तो निफ्टी 50 के आपने देखे कि ये 50 स्टॉक्स हैं, ये 50 के 50 आपने अपने पोर्टफोलियो में कॉपी पेस्ट कर लिया कि ये जो 50 स्टॉक्स हैं मिनी में इन्वेस्ट करेंगे, सेंसेक्स वगैरह में. ETF जो होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं. तो ETF में अगर आप कभी कोई प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हो, जैसे ग्रो में अगर आप जाओगे, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, निफ्टी 20 करके ही आता है. सो अगर आप जाओगे, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, निपॉन करके क्या, निपॉन के खुद के निफ्टी 20 हैं. तो जिस कंपनी में निपॉन होल्डिंग्स करता है वो सारे, अगर आप ETF जो होता है वो स्टॉक में एज अ स्टॉक ट्रेड करता है.
वो एज अ स्टॉक ट्रेड करेगा। आप एक्सचेंज ट्रेड में इन्वेस्ट कर सकते हो और आप लिमिट यूनिट्स हर एक कंपनी में होल्ड कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक कंपनी होल्ड कर ली तो यार मेरा पूरा मैंने रिस्क कर लिया। आपके पास बहुत सारी कंपनीज होंगी और आप लिमिट यूनिट्स आपने उस कंपनीज में होल्ड करी हुए होंगे। हम टीवी पे देखते भी है, CNBC में सेंसेक्स उतना ऊपर चला गया, निफ्टी ये चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इट्स लाइक डे टू डे काइंड ऑफ अ थिंग। सो ये सारे आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए। अब ऑब्वियसली अब एज के अकॉर्डिंग रिस्क लेना चाहिए। सो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि जो 18 से जो लोग बड़े हैं टिल 30, तो आप जितना रिस्क ले सकते हो उतना लो। बिकॉज अभी आपको ऊपर आके कोई ऐसे कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपकी फैमिली स्टार्ट हुई है टिल 30। तो मुझे लगता है आजकल तो कोई शादी वादी नहीं करता है, तो एवरीबडी इज सिक्योर कि अभी तो नहीं होने वाला। अब किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दैट्स डिफरेंट थिंग, बट ऑब्वियसली एवरीबडी इज अर्निंग देयर ओन मनी, सो वो तो कोई रिस्क नहीं है। तो आप जितना रिस्क ले सकते हो उतना लो, लेकिन ऑब्वियसली 80% इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में कर सकते हो एंड 20% यू कैन एक्सप्लोर डेट में हमने इन्वेस्ट कर दी कि चलो फिक्स्ड है, मतलब ऑब्वियसली फिक्स्ड इनकम आती रहेगी। अबव 30 यू कैन मूव, आप इस रेशियो को थोड़ा सा कर सकते हो कि 70 30 पे आ गए। किड्स आर कमिंग, अपने फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अब आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो बच्चों के पर्सपेक्टिव से भी करना है कि यार मतलब बच्चा अगर मेरा 18 साल का हो जाए तो इतना मेरे पास होना चाहिए कॉर्पस कि मैं उसकी एजुकेशन फंड कर सकूँ। माई फादर ऑल्सो क्रिएटेड दैट। जब हम ऑल्दो यूज़ आया नहीं क्योंकि हम सब ऐसे ही पढ़ लिए, लेकिन ऑब्वियसली यू नेवर नो, कोविड के टाइम पे सो अनसर्टेन, तो एवरीबडी प्लान समथिंग फॉर देयर किड्स। तो आप वैसे कर सकते हो कि गोल्ड पर्पस हमने गोल्ड पर्पस इन्वेस्टमेंट कर दी कि जहाँ पे हमने बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। आफ्टर 40 रिटायरमेंट आने वाली होती है बिकॉज हार्डली 20 years आर लेफ्ट। एंड आजकल तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पीपल आर बिलीविंग इन अर्ली रिटायरमेंट, तो वो रिटायरमेंट 50 की एज में भी ले लेते हैं। तो वैसा कॉर्पस भी क्रिएट करना है। सो नाउ योर सिचुएशन स्टार्ट्स पकड़िंग, तो उसमें फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस होनी चाहिए। जब आप रिटायरमेंट अपनी टच करने वाले हो, आप ELSS फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विच इज़ इक्वल इलेक्ट सेविंग स्कीम्स। तो वो आपको टैक्स में भी टैक्स एग्जेम्पशन भी देता है, तो आप उसमें भी कर सकते हो। 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, काफ़ी अच्छी इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, तो रिस्क वगैरह भी होता है, तो आप अच्छे खासे रिटर्न्स कमा लो और टैक्स एग्जेम्पशन भी है। 1.5 लाख का आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, तो आप वो कर सकते हो। NPS विच इज़ नेशनल पेंशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन देता है। ये तब आने चाहिए जब रिटायरमेंट प्लानिंग की उसमें आए हो, बिकॉज उस टाइम पे आप ऑलरेडी एज हो चुके, अब रिस्क में कोई पॉइंट नहीं है, तो जितना डेट में जितना आप चाहते हो कि यार आराम से निकले ज़िंदगी मेरी, तो वैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दीज आर द इन्वेस्टमेंट horizon and this is how you can start your investing. I'll still say अर्ली स्टार्ट करोगे इन्वेस्टिंग वो उतना हेल्पफुल होगा, एंड जितना रिस्क अभी ले सकते हो उतना लो, बिकॉज अभी कैश फ्लो कुछ कम नहीं होने वाला है। अभी जॉब करना स्टार्ट करोगे, सैलरी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, और सैलरी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो फिर जितना अर्ली आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ उतनी होंगी, तो दैट विल हेल्प यू फॉर श्योर। एज आई मैंशन, लाइफ इज़ अनसर्टेन, तो इंश्योरेंस कम्स फॉर योर रेस्क्यू। सो हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बीच में भी कन्फ्यूजन होती है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम कम होता है एंड उसमें हॉराइजन होता है 50 से 30 ईयर्स की एज में आप सर्वाइव कर लिए, अगर आप उसमें आपकी डेथ वेथ हो जाती है तो वो जो पैसा होगा वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा, जितना भी आपने करा होगा। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत हाई होता है, लेकिन वो अश्योर करता है और आपकी डेथ वेथ भी हो गई तो आपको पैसा मिल जाएगा, कि मतलब लाइक पर्सन इज उसकी डेथ हो चुकी है तो फैमिली को मिल जाएगा। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस के बीच में ये फ़र्क होता है। हेल्थ इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को प्रॉब्लम हो गई है एंड बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, अब पैसा नहीं है, वी ऑल नो हॉस्पिटल बिल्स, प्राइवेट बिल्स या सो मच, उसको अफोर्ड करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कम फॉर योर रेस्क्यू। आप हेल्थ इंश्योरेंस के स्कीम जो भी आपने डिटेल्स वगैरह पढ़ के समझ के, एंड डोंट गेट इनटू द स्कैम्स। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करके इफ़ यू वांट यू कैन हायर अ वेल्थ एडवाइजर और अ मैनेजर हु कैन हेल्प यू। आई स्टिल से इवन ड्यूरिंग योर इन्वेस्टमेंट इफ़ यू फील कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट टेक रिस्क विद योर फाइनेंस, डू इन्वेस्ट, डू आस्क समवन जो इस फील्ड में हो, एंड एक फाइनेंशियल वेल्थ मैनेजर के पास आप जा सकते हो फॉर योर हेल्प डेफिनेटली। एंड इंश्योरेंसेज में भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दो स्कैम्स एंड अपने पैसे को, आपका ही पैसा है किसी और का नहीं है, तो थोड़ा वाइजली सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें एंड सोच समझ के इंश्योरेंस भी लें। अब हम आजकल बात कर रहे हैं जनजी के बारे में उनका कहना है वो सिर्फ एक ही बार जी रहे हैं। हाँ, पर
इस तरीके की लाइफ को मैनेज करना और साथ साथ सेविंग्स भी कर पाना, इन दोनों को कैसे आप मतलब बता पाएंगी ऑडियंस को या हमारी स्टूडेंट्स को? या ये तो बात बिल्कुल सही कही है, दे लिव इन यू ओनली लिव वंस वाला कॉन्सेप्ट, एंड फिर वो ओनली लिव वंस हो जाता है व्हेन यू डोंट हैव मनी इन योर अकाउंट फॉर श्योर. सो मैंने पहले ही बताया, अर्ली इन्वेस्ट करोगे अर्ली हेल्प करेगा. लेकिन एक छोटा सा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाहूँगी, MPC एंड MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ रहा है, आपका सेविंग्स बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन नहीं. कंजम्पशन शुड गो डाउन, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा. यू नो आजकल वो यू ओनली लिव वंस वाला कॉन्सेप्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आजकल शो ऑफ का भी एरा काफ़ी आ चुका है. मटीरियलिस्टिक कंजम्पशन इतना बढ़ गया है कि पीपल दे आर नॉट कंज्यूमिंग थिंग्स टू सेटिस्फाई देमसेल्फ. वो इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज उन्हें सामने वाले को सेटिस्फाई करने की, तू हो जा, मेरे पास ये है. मिनिमम सी चीज़ें भी, इवन दे आर बाइंग देयर क्लोथ्स ऑन EMI. आई मीन अगर आप फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, क्लोथ्स, अगर आप इसको EMIs पे खरीद रहे हैं, गाइज यू आर टोटली स्क्रूड. अपने फाइनेंस को हो पूरा अच्छे से समझो, उसको एनालाइज करो, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट. इट्स हाई टाइम. 50,000 की सैलरी में आप 1.5 लाख का फ़ोन अफोर्ड कर रहे हो, आपकी मंथली जितनी की SIP जानी थी उतनी की तो EMI कट के जा रही है. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट. और मैंने पहले भी कहा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सैलरी जैसे से बढ़े सेविंग्स बढ़ाओ. दैट्स व्हाई आई सेड इन्वेस्टमेंट करो. एंड जब आता है ना वो इंस्टॉलमेंट की रेट आती है, अरे इंस्टॉलमेंट रह गई है, तो लगता है यार चलो ठीक है. इसलिए मैं तो अपनी इंस्टॉलमेंट की डेट भी अर्ली रख देती हूँ कि भाई 4-5 की सैलरीज आए उससे पहले SIP कट जाए तो सही है. क्योंकि फिर रहेगा ना कि चलो ठीक है इतना ही अमाउंट है. इवन मैं खुद अपने आई थिंक हार्डली 2-3 हज़ार रुपये खर्च करती हूँ मंथली, क्योंकि बाकी तो SIP चले जाते हैं. बिकॉज आई नो ना द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग. एंड जब वो मैं 60 की एज में हूँ तो आई विल बी रियली हैप्पी कि मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, नाउ आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट. सो जेनजी को अपने कैफे विजिट्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. जितने अमाउंट आप कैफेज को दान में देकर के आ रहे हो उतने अमाउंट आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं. बिकॉज SIP मिनिमम से 100 अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. मैंने अपने कॉलेज में भी स्टार्ट करी थी यार, मेरी तो अभी भी चल रही है वो 1600 की इन्वेस्टमेंट. वो 3 मैंने स्कीम्स में करी, वो अभी भी चल रहे हैं. तो वो 30,000 हो चुके थे. हम लाइक कि ठीक है यार, आई डोंट वांट टू ब्लॉक देम फर्दर. चलते रहो, मेरा कुछ नहीं जाने वाला. बिकॉज इट्स हार्डली क्रिएटिंग होल इन माई पॉकेट. एंड वो होल मुझे अच्छा लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट ही मिलेगा. जब मुझे लग रहा है रिडीम करना, आई कैन रिडीम दैट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं जेनजी को सिर्फ ये एडवाइस देना चाहूँगी, आप अर्ली इन्वेस्ट करें अपने कैफेज, मॉल्स, आईफोन्स इन एक्सपेंसिव चेक-इन्स, चेकआउट्स आप कर सकते हैं जब आपके पास अच्छा खासा आपके पास सेविंग्स हो. एंड जब तक आपके सेविंग्स और कंजम्पशन के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं है, तब तक स्टॉप स्प्लर्जिंग, इन्वेस्ट. इट्स रियली हाई टाइम. एंड अभी जाके पैसे बढ़ेंगे, कम किसी के नहीं होते, बढ़ते ही हैं. तो सैलरी भी बढ़े, काम भी तो करोगे बच्चे, अभी से थोड़ी ना सब करना है, तो सब हो जाएगा, डोंट वरी. अगर आपको हमारी ऑडियंस को या फिर किसी स्टूडेंट को एक गोल्डन एडवाइस देनी हो कि वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे शुरू करें या फिर फाइनेंस करियर किस तरीके का चूज करें, तो वो क्या होगा? पहले तो मैं फिनेंस करियर के बारे में बात करना चाहूँगी. बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. Build your concepts, work on your concepts. Trust me, everything will be smooth. And communicate well. Communicate with people. जिनको आप जानते हो उस फील्ड में, who are already in finance career, communicate with them. How I can build my portfolio. How can I build portfolio as in not finance. My resume or my portfolio. मैं कैसे अपने आप को build up कर सकती हूँ, कर सकता हूँ. It's very important. Networking. Socializing and networking are completely different. Socializing आप clubs में करें, networking आप अच्छे से प्रोफेशनल लोगों से मिलके करें तो वो बेटर होगा. क्लब्स में कोई नेटवर्किंग नहीं होती है. यू नीड टू टॉक टू पीपल. सो नेटवर्किंग एंड सोशलाइजिंग आर completely different. Networking is really important in financial career because that's the only way you can build connections and that's the only way you can build yourself. And about investing, I would like to recommend some books. First is one of my favorite, which is about जो मैंने earlier question answer किया था on Gen Z, The Monk Who Sold His Ferrari. It's all about materialistic things. I'll promise you will come out of your materialistic obsession. To be honest, it will definitely help you. It's by Robin Sharma. You can read. It was my first book of my life, and it really helped me a lot. Second, when it comes to investing, you can study psychology of money. It can help you if you want to understand the basic concepts of investing and why it's important.
Third, Atomic Habits. It's all about time management, how habits can shape your career and how it can shape your life as well. So it will help you a lot. Second, One Up on Wall Street. It's by Peter Lynch. Oh God, he's the amazing. He was a fund manager. I like to mention that. And उसके टाइम पे उसका फंड हमेशा ऊपर रहा है. Like that's how nice person he was. And उसने बहुत अच्छे उन्होंने golden rules अपनी book में बताया, and it will definitely help the audience and to everybody, I mean, in general. So yeah, these 4-5 books I would like to recommend. And if somebody wants to read like, you know, on business and all these things, so they can read Connect the Dots. It's an amazing book. It covers all the areas of business and all about the industry. So it will definitely help the audience for sure. So thank you so much, Anushka, for joining us today and sharing your journey with us. Thank you so much.